Welcome to Brain Tonica. Your tutoring video will start shortly. For better learning experience, use headphones. Watch the complete video in one go. Hello everyone, welcome back. So we were discussing the chapter circles, and in the chapter students, now we know about the two main theorems of the chapter. Okay, the theorem number 1 was the tangent at any point of a circle is always perpendicular to the radius through that point, through the point of contact. Okay, and the second theorem we discussed was the tangents drawn from an external point to a circle are always equal in length. Okay, now students, we have to solve more questions based on these two theorems. Okay, let us start with this question, students. This is a very important question. Many times they asked this question. Okay, the question is, a circle is touching the side BC of a triangle ABC at point P. So let us draw a circle. So here it's a circle. Suppose the circle is touching the side BC of a triangle. So students, this is the side BC of a triangle. Okay, and the point of contact here is P. Okay, and AB and AC, the other two sides of triangle, when produced, it meets the circle at Q and R. Okay, you can see here what is written. Circle is touching the side BC of a triangle ABC at P and touching AB and AC, the other two sides of a triangle, when produced at Q and R. So students, these are the two other sides. Okay, suppose this is A, this is B, this is C, and AB and AC, when we produce, it meets the circle at point Q and at point R. Clear students? So obviously AQ, AR will be the tangents to this circle from the point A, and BC is also a tangent to this circle with point of contact P. Okay, now what we have to prove, students? We have to prove that the length of this tangent AQ is half of the perimeter of the triangle ABC. Okay, चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सॉल्यूशन देखिए इस स्टूडेंट इस क्वेश्चन का. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, what is perimeter of triangle ABC? Let us denote it with P. Okay, suppose P, perimeter of triangle ABC, we denote it with P. Okay, what will be the perimeter, students? Obviously perimeter means AB plus BC plus AC. So now I will write P as AB plus BC plus AC. Now I have to prove that AQ is equals to half of P. Okay, so now students, first of all we have to apply the theorem here. Okay, as we can observe, students, here AQ and A are the tangents from an external point A to this circle. Okay, so the length of these two tangents will be equal by the theorem number 2. Okay, so let me just write here, students, AQ is equals to AR. Okay, say it's equation number 1. Similarly, students, if we consider P as an external point to this circle, BQ and BP will also be equal. Okay, so yes, we can also write that BQ will be equal to BP because they are the tangents to this circle from the external point B. BQ and BP are the tangents. Okay, and say it is equation number 2. And in the similar manner, students, you can consider CP and CR as the tangents. Okay, so I will write as CR is equal to CP. Okay, now students, the region behind these three equations is the same. The tangents drawn from the external point to a circle are equal. So you have to write the region here, students. We know tangents drawn from an external point to a circle are equal in length. So this is the region, the theorem number 2. Students, clear? Now we have to prove that the perimeter of this
ट्राइंगल एबीसी इज डबल ऑफ ए क्यू। अगर आप 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो टेंजेंट का डबल हो जाएगा, ठीक है, टेंजेंट का डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स ए क्यू हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को हम स्टार्ट पेरीमीटर से भी कर सकते हैं। चलिए पेरीमीटर से इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, या फिर हम ए क्यू इज इक्वल्स टू ए आर इस इक्वेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पेरीमीटर से स्टार्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन को। देखिए कैन यू ऑब्जर्व स्टूडेंट्स, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी is nothing but the P, where P is perimeter of this triangle. Okay, now students AB can be written as AQ minus BQ. आप देखिए स्टूडेंट्स AB जो है ये AQ में से BQ को सब्ट्रैक्ट करने पर मिल सकती है आपको, तो AB की जगह मैं लिख रहा हूं AQ minus BQ फ्रॉम द फिगर। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे ही अगर आप BC को ऑब्जर्व करें स्टूडेंट्स, तो BC कैन बी स्प्लिटेड इनटू 2 पार्ट्स, BP प्लस CP। ओके, सो BC को मैं ब्रेक कर रहा हूं BP प्लस CP में, नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। एंड AC सिमिलर, इन द सिमिलर मैनर स्टूडेंट्स, AC कैन बी रिटन एज AR माइनस CR। ओके, सो इट विल बी इक्वल टू AR माइनस CR एंड दिस विल बी इक्वल टू पेरीमीटर P। ओके, now it's time to use the equations 1, 2 and 3. Students, in the result we just want AQ and P. Okay, obviously we have to change all the others or we have to cancel them. Okay, so what I am doing students, this is AQ, now this is minus BQ. Now obviously students, this BQ can be substituted by BP using the equation number 2. Okay, using the equation number 2, can I write BP in place of BQ? Clear students? So using equation number 2, I can write BP in place of BQ, and here we have plus BP. Obviously this plus BP and minus BP will get cancelled out. In the similar manner students, if you observe, CP is equal to CR. So using the equation number 3, I can write CR in place of CP, and obviously it will be cancelled out with the minus CR, which I will get in the next step. Okay, and this AR can be substituted with AQ from the equation number 1. Okay, so using equation number 1, in the place of AR I can write AQ, and this is minus CR. So minus CR plus CR will also get cancelled and out, and you got this result students. The result you wanted is now achieved. AQ is equals to P by 2, or AQ is nothing but half of the P was what? P was perimeter. So yes, perimeter of the triangle ABC. Students, in this way you can solve this question. Now remember the result, the numerical question can be asked on this result. Okay, possibly the question asks you in this way, you are given AQ and just find the perimeter of the triangle ABC. So students, you have to just half the perimeter. Okay, suppose you are given the perimeter of the triangle ABC, and if you half the perimeter you will be getting the AQ, and suppose you are given the AQ length and you have been asked the perimeter, in that case you have to double the tangent. अगर आप टेंजेंट का डबल करोगे तो आपको ट्राइंगल एबीसी की पेरीमीटर मिल जाएगी। यूजुअली ऐसे ही क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स कि आपको AQ की लेंथ दे देते हैं और आपसे पेरीमीटर पूछ लेते हैं ट्राइंगल की, तो आप उसको डबल कर दीजिएगा, आपको पेरीमीटर मिल जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर आपने जो इक्वेशंस का यूज़ करा है स्टूडेंट्स, इसको अगर आप लिख देंगे तो बेटर है। यहाँ पर लिख दीजिए यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 and इक्वेशन नंबर 3. Clear students? So this is a very important result. You have to remember this for the numerical questions. Especially students, remember the result for numerical question. Many times they ask the question that the figure is given and the tangent AQ is given. Okay, and they just ask directly the perimeter. Okay, you need to double that. चलिए, let's move to the next question students. This is again an important question given in the NCERT. Okay,
टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्किल विथ सेंटर O। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर भी ये जो क्वेश्चन है ना, इसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं और इसमें जो रिजल्ट ला रहे हैं ना, आई वुड सजेस्ट यू टू कीप द रिजल्ट इन माइंड ऑलवेज। क्यों? क्योंकि जब आप कंपटीशन का एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर जो ये जो रिजल्ट है ना, इन रिजल्ट पे बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर रिजल्ट हमारे माइंड में रहेगा तो फिर हम फटाफट उस रिजल्ट को वहां पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्किल विथ सेंटर O। सपोज दिस इज द पॉइंट T and TP and TQ are the two tangents. Clear students? And O is the center of this circle. We have to prove a result. Now what is the result? Let me write the result. What we want to prove, students? We want to prove that the angle PTQ, just observe students, the angle PTQ. Angle PTQ means this complete angle PTQ is double of the angle OPQ. Now for getting the angle OPQ I have to join P and Q. So let me first join P and Q. Okay, so yes, I joined the points P and Q. Now students, मुझे ये प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल PTQ, ये इस एंगल का डबल है, OPQ का डबल है, ठीक है। ये रिजल्ट याद रखें स्टूडेंट्स, अभी इसका प्रूफ समझें, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स, ये NCERT में आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा एंड द रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कई तरीके से स्टूडेंट्स इसको किया जा सकता है। आप चाहें तो इसको एंगल सम प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी से कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एंगल सम प्रॉपर्टी से भी इस क्वेश्चन को इजीली किया जा सकता है, बट बेस्ट वे क्या हो सकता है हम उस पर बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज तो कंफर्म है स्टूडेंट्स कि इन ट्राइंगल TPQ, इन ट्राइंगल TPQ TP is equals to TQ. TP is equals to TQ. Now what is the reason behind this? Obviously the tangents drawn from the external point T to this circle should be equal. So this is the reason is the theorem number 2 directly. Okay, I can write the theorem number 2. Tangents drawn from point T to the circle are equal. Okay, so this is the reason TP is equals to TQ. Now students, since TP is equals to TQ, we can observe that this becomes an isosceles triangle, and we know in an isosceles triangle the angles opposite to equal sides are also equal. Okay, तो students क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि एंगल TPQ इक्वल होगा एंगल TQP के? ये वाला एंगल TPQ इक्वल होगा इस एंगल TQP के, अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, ये एंगल्स गारंटीड इक्वल होने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आप चाहें तो इसको x एज्यूम कर सकते हैं, फॉर योर कन्वीनियंस आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर ना भी यूज़ करें तो भी आंसर तो हम निकाल ही लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, एंगल TPQ और एंगल TQP आपस में इक्वल है, ये हमको समझ में आ गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, ट्राइंगल TPQ में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इन ट्राइंगल TPQ, just by use of angle sum property, can I write students that angle PTQ means this angle, okay, plus angle TPQ plus angle TQP, the sum should be 180 degree, बट एंगल TPQ इज इक्वल टू TQP। अभी हमने कहा कि ये TPQ जो है वो TQP के इक्वल है, तो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, TQP को हटा देते हैं और TQP की जगह TPQ ही लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 का यहाँ पर यूज करूँ, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, तो स्टूडेंट्स मैं TQP को TPQ लिख दूंगा, ठीक है। तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी एंगल PTQ प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TPQ।
तो मैं डायरेक्ट 2 टाइम्स एंगल टीपी क्यू लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स। चलिए मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ इसको 2 टाइम्स एंगल टीपी क्यू, क्योंकि 2 बार आ रहा है ना एंगल टीपी क्यू प्लस एंगल टीपी क्यू, आपने टी क्यू पी की जगह टीपी क्यू लिख दिया, ठीक है। द सम शुड बी 180 डिग्री। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? द सम शुड बी 180 डिग्री। नाउ just by angle sum property we achieved this result. Clear students? The sum should be 180 degree. Okay, now students, this is the angle TPQ. So we got the relation between this angle and this angle. Okay, and what we want to relate? We want to relate this angle with this angle. So students, can you observe here OP will be perpendicular to TP. This complete angle is gonna be 90 degree. Can you observe students this complete angle is gonna be 90 degree. Okay, चलिए एक बार इसको और सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ से 2 टाइम्स एंगल TPQ जो होगा, 2 टाइम्स एंगल TPQ वो कितना होगा स्टूडेंट्स? वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल PTQ, एंगल PTQ। और अगर मैं यहाँ से एंगल TPQ की वैल्यू लिखूं तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। 2 से जब डिवाइड करूंगा स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल PTQ अपॉन 2। ओके, जब मैं इस 2 को सेपरेट करूंगा, डिनोमिनेटर 2 को सेपरेट करूंगा, तो जो रिजल्ट मुझे मिलेगा एंगल TPQ की फॉर्म में वो मिलेगा 180 अपॉन 2 दैट इज 90 डिग्री माइनस एंगल PTQ अपॉन 2, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ हाफ ऑफ एंगल PTQ। ओके, लेट इट से इक्वेशन नंबर 2, हम कहते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, TPQ मैंने निकाल लिया, TPQ मतलब मैंने ये एंगल निकाल लिया, ये एंगल, ठीक है स्टूडेंट्स। आप चाहें तो इसकी जगह x मान के भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको स्टेप्स लिखने में थोड़ा सा ईज फील होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स सबसे इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ पर एंगल TPO क्या है? यहाँ पर एंगल TPO 90 डिग्री है। क्यों है? बाय थ्योरम नंबर 1। बाय थ्योरम नंबर 1 हम कह सकते हैं कि radius is always perpendicular to the tangent through the point of contact. Tangent is always perpendicular to the radius through the point of contact. Okay, so I'll be writing here OP is perpendicular to TP. Okay, radius OP is perpendicular to TP. आप ऐसे भी लिख सकते हैं बाय थ्योरम नंबर 1, और ऐसे भी लिख सकते हैं tangent is perpendicular to the radius through point of contact, through point of कॉन्टैक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो एंगल TPO कितना आ गया? 90 डिग्री। अच्छा, एंगल TPO को आप 2 एंगल्स में स्प्लिट कर सकते हो। एक तो एंगल होगा TPQ, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये TPO पूरा 90 है, ये TPO पूरा 90 है। क्या ये 2 एंगल्स में स्प्लिट हो रहा है? एक तो TPO और दूसरा OPQ, ठीक है। तो TPQ प्लस एंगल OPQ इज इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 में आपके पास एंगल TPQ की वैल्यू है। आप इक्वेशन यहाँ से भी एंगल TPQ को निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा अगर हम यहाँ से भी एंगल TPQ को निकालेंगे, या फिर हम सब्स्टिट्यूट भी डायरेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। एज यू विश, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 को सब्स्टिट्यूट कर दें, मतलब एंगल TPQ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, क्योंकि हमको एंगल TPQ को एलिमिनेट करना है यहाँ से, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। जैसे ही मैं एंगल TPQ की जगह ये इक्वेशन नंबर 2 यूज करता हूँ, तो देखिए मुझे रिजल्ट क्या मिलता है स्टूडेंट्स? मुझे रिजल्ट मिलता है 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल PTQ प्लस एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री से 90 डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस का हाफ एंगल PTQ जैसे ही राइट हैंड साइड में जाएगा तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। मुझे रिजल्ट मिल जाएगा स्टूडेंट्स जो एंगल OPQ होगा, OPQ, ठीक है, वो हाफ होने वाला है किसका? एंगल PTQ का।
पी टी क्यू का। और अगर मैं इस 2 को इधर राइट हैंड साइड में ले जाऊं तो 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू हो जाएगा एंगल पी टी क्यू के इक्वल, और यही रिजल्ट मुझे स्टार्टिंग में क्वेश्चन में प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट स्टूडेंट्स, आप याद रखें इस रिजल्ट को कि ये जो एंगल पी टी क्यू होता है, ये एंगल पी टी क्यू, ये इस एंगल का डबल होता है। मतलब अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल गारंटीड 2 थीटा होगा। याद रखें स्टूडेंट्स। ओके, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर इन एडिशन, कि अगर मैं O को T से ज्वाइन कर दूं, अगर O को T से मैं यहाँ पर ज्वाइन कर दूं, ठीक है, जैसे ही मैं O को T से ज्वाइन करने जाता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर मैं O को T से ज्वाइन करता हूँ तो आपको एक ट्राइंगल मिल जाएगा TPO। ठीक है, तो ये जो TO होगा ये एंगल बाइसेक्टर होगा किसका, एंगल T का। ये जो TO होगा जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा T का। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली ये आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये एंगल भी यहाँ पर 90 डिग्री होगा। हालांकि ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको फर्स्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन की हेल्प से। तो स्टूडेंट्स जब ये वाला एंगल पूरा अभी मैंने 2 थीटा कहा था, तो इसका मतलब ये वाला एंगल थीटा हो गया। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर फिगर में। मतलब आप यहाँ पर ये भी प्रूव कर सकते हैं कि एंगल PTO जो है, ये एंगल PTO ये एंगल OPQ के इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हालांकि फिगर में आपको ये अनइक्वल से दिख रहे हैं क्योंकि फिगर तो हमने जस्ट फॉर फिगर इज नॉट टू अप टू स्केल। ओके, बट ये एंगल्स इक्वल जरूर होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होने वाला है स्टूडेंट्स। ठीक है, और इस कंप्लीट एंगल PTQ को तो हम डबल कहेंगे OPQ का। क्लियर, तो ये सारी चीजें अगर आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स तो आपको गारंटीड ये हेल्प करेगा आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर। ठीक है, आप कोई सा भी कंपटीशन देने जाते हैं और अगर उसमें सर्किल से क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स ये जो रिजल्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। इस रिजल्ट को आप स्पेशली याद रखें। हाँ, एक चीज़ मैंने बताई थी स्टूडेंट्स आपको कि आप चाहें तो इसको आसान बनाने के लिए x मान के भी कर सकते हैं। जैसे कि इसी क्वेश्चन को आप शॉर्टकटली अगर करना चाहें तो मैं बताता हूँ आपको, मतलब जल्दी से करना चाहें कम टाइम के अंदर, हालांकि रिप्रेजेंटेशन मैटर करता है, बट अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखो ये एंगल x है तो ये एंगल भी x है, आप दोनों को x मान लो और इस पूरे एंगल को आप मान लो y मान लो, इस पूरे एंगल को आपने y मान लिया तो एक इक्वेशन बनेगी y प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो y प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने एक इक्वेशन बना दी। ठीक है, अब इस एंगल को आप z बोल दो, इस एंगल को आप z बोल दो, इस एंगल को। ठीक है, अब एक इक्वेशन बन जाएगी z प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। सॉरी, z प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, क्योंकि एंगल OPT 90 डिग्री है तो एक इक्वेशन बन जाएगी x प्लस जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर आप दोनों साइड डबल करोगे तो 2x प्लस 2z मिल जाएगा 180 डिग्री के। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डायरेक्टली कंपेयर कर दो स्टूडेंट्स। जैसे ही आप दोनों को कंपेयर करोगे तो y प्लस 2x इक्वल हो जाएगा 2x प्लस 2z के, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2z आ गया और डायरेक्टली हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया 4 से 5 स्टेप में। ठीक है, ऐसा आप भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, बट जब आपके पास आपको फटाफट क्वेश्चन करना हो, टाइम कम हो, अदरवाइज रिप्रेजेंटेशन मैटर करता है। अगर आपको ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में मिले या 3 मार्क्स में मिले तो जिस तरीके से मैंने आपको पहले कराया आप उसी तरीके से प्रॉपरली एक एक चीज़ लिखते हुए करें। बाकी अप्रोच याद रखने के लिए आप ये शॉर्टकट याद रख सकते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस एक बार एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं ट्रायंगल TPQ में, और उसके बाद हम एक प्रॉपर्टी लगा रहे हैं कि एंगल TPO 90 डिग्री है, और इन 2 प्रॉपर्टीज से हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और अब इस क्वेश्चन का यूज मैं करूंगा अगले क्वेश्चन। Now let's see this question students. PQ is a chord of length 8 cm of a circle of radius 5 cm. The tangents at P and Q intersect at point T and we have to find the length TP. Student, this is a numerical question. You will find this question also in NCERT and a very important question. Why this is very important students? The reason is I will use the concept of previous question in this particular question, and the question may come in 4 mark.
Okay, many times they asked this question. Okay, now an interesting questions in which we will manipulate the results to get the answer. We have to find the length TP. Okay, and let's just check what we are given. We are given PQ is a chord of length 8 cm. So this is PQ, and the length of PQ is the chord, and length of this chord is given 8 cm. And the tangents at P and Q intersect at point T, or you can say TP and TQ are the tangents from the external point T to this circle. Okay, let us say center of this circle is O. Clear? We have to find the length TP, and what we are given? We are given the length of PQ. The complete length PQ is given. Let me just write here. Given. What we are given? We are given the length PQ as 8 centimeter. Okay, now students, here I will be using the result directly. Okay, the result which I told you many times. Okay, given PQ is 8 centimeter. Also we are given the radius of this circle, that is OP, 5 centimeter. OP is 5 centimeter. Okay, so it is 5 centimeter, and we want to find the length TP. Okay, TP is question mark. Now students, in this question, first of all, we will use a result which we already know. Okay, which I told you before also. Okay, the result is here, this angle is gonna be right angle. Suppose this point is R, this point is R, this angle R is gonna be 90 degree, and PR is gonna be equal to QR. Now what, why this result, how this result we proved? Students, you can give the reason that TO is angle bisector of this triangle, this isosceles triangle TPQ. So obviously it will perpendicularly bisect the base PQ. Okay, if you want, you can prove the result by the congruency. Okay, मैंने शायद आपको फर्स्ट लेक्चर में ही इसका प्रूफ बता दिया था. ठीक है, बट यहाँ पर अगर हम रिजल्ट को प्रूफ करना जाएंगे तो स्टूडेंट्स, इन दैट केस द क्वेश्चन विल बी लेंथी. ओके, सो इट्स बेटर टू यूज द रिजल्ट डायरेक्टली. ओके, द एंगल आर विल बी 90 डिग्री एंड पी आर विल बी आर क्यू. और इन द अदर वर्ड्स आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कि दिस टी आर इज गोना बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस chord PQ. So I will start the question directly from this result. Okay, let me write here. TR is perpendicular bisector. TR is perpendicular bisector of PQ. Now the region is TR is bisector of angle PTQ or angle T. Angle PTQ. TR is bisector of angle PTQ of isosceles triangle. Of isosceles triangle TPQ. TPQ. Okay. आपको मैंने पिछले ही क्वेश्चन में समझाया है क्यों TPQ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पर TP TQ के इक्वल है. ठीक है, तो इस रिजल्ट को हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज करने वाले हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स एक मेथड है डायरेक्ट बाय पाइथागोरस थ्योरम. आप दो ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है कुछ मैनिपुलेशंस की हेल्प से वो अचीव कर लो. ठीक है, एक और मेथड हो सकता है स्टूडेंट्स जिसमें हम सिमिलरिटी या ट्रिगोनोमेट्री लगा के भी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं. ठीक है, मैं आपको दोनों मेथड्स बताऊंगा. पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कंप्लीट क्वेश्चन को. ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टूडेंट्स, क्योंकि टी आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है chord PQ का, तो मैं यहाँ लिखूंगा PR and QR, they will be equal and they will be half of PQ. They will be half of total length PQ. Okay, and total length PQ, since we are given 8, so it will be 4.
So 4 centimeter each will be PR and QR. So this PR is 4 centimeter. Also this QR is 4 centimeter. Clear? Now students, since angle R is 90 degree, can I apply the Pythagoras theorem in triangle POR? In a triangle POR, since angle R is 90 degree, just by use of Pythagoras theorem, what can I write? स्टूडेंट्स हम चाहें तो इस OR को कुछ एज्यूम कर सकते हैं और OR को OR भी रहने दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ स्टूडेंट्स, OR को अभी OR ही रहने देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस OR की हमको डायरेक्टली वैल्यू निकालनी है बस, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से लिखते हैं OR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, it will be equals to OP square. Clear? Now OR square we want to find, PR square we are given 4 square and OP square we are given 5 square. Okay, so from here students, the length of OR square plus 16 will be equals to 25, and from here OR square will be 25 minus 16, that is 9, and the value of OR will be 3 centimeter. Clear? So what we got this OR length as 3 centimeter. Okay, this length we get as 3 centimeter. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ये हमने निकाल ली लेंथ 3 सेंटीमीटर। अब अभी तो हमने इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमारे पास एक और ट्राइंगल है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा सकती है। इनफैक्ट 2 और ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। बट स्टूडेंट्स बेटर ये रहेगा हम ट्राइंगल TPO में डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, क्योंकि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एंगल P भी यहाँ पर 90 डिग्री है। अच्छा, ट्राइंगल TPO में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो यहाँ पर TR भी आएगा, तो TR को कुछ एज्यूम कर सकते हैं हम चाहें तो, ठीक है। बाद में हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, TP जिसको हमको निकालना है उसको तो हम एज्यूम कर लेते हैं X, और TR जिसको कि हम एलिमिनेट कर देंगे इसको एज्यूम कर लेते हैं Y, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट्स, से TP इज इक्वल्स टू X सेंटीमीटर एंड TR इज इक्वल्स टू Y सेंटीमीटर। अच्छा, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स अगर आपसे कोई पूछे कि TO लेंथ कितनी हो जाएगी, सो TO क्योंकि किसके इक्वल है आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, TO TR प्लस OR के इक्वल है, और OR हमारे पास कितनी है, OR हमारे पास 3 है, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं क्योंकि हम OR को 3 सेंटीमीटर निकाल चुके हैं। तो TO को हम लिख सकते हैं TR प्लस 3, या फिर आप लिख सकते हैं Y प्लस 3, TO विल बी Y प्लस 3 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं इन ट्राइंगल TPO, in triangle TPO, then we will apply the Pythagoras theorem in triangle TPR as well. Okay, and by applying the Pythagoras theorem in these 2 triangles, we will be getting the Y and X. Though X is needed, Y we will eliminate. Okay, see, by Pythagoras theorem in the triangle TPR, what can I write students, because angle R is 90 degree, this TP will be the hypotenuse. Okay, so I will be writing TR square plus PR square is equals to TP square. Okay, now TR is Y, so I will be writing the equation directly. TR square means Y square. Okay, PR square means 4 square, and the hypotenuse TP is X square. So I will be getting this equation. Okay, say this is equation number 1. Clear students? This equation we got just by applying the Pythagoras theorem in the triangle TPR. Now we have to apply the Pythagoras theorem in the triangle TPO as well. Okay, so in triangle TPO by Pythagoras theorem. Now how we can apply the Pythagoras theorem here students? Because we are given angle TPO 90 degree just by theorem number 1, or we can write the region radius is perpendicular to the tangent. Okay, tangent is perpendicular to radius. In this way we can
show the reason. TPO is equals to 90 degree. So in this case, students, TP square plus OP square, because in this case TO will be the hypotenuse. So the equation will be TP square, that means x square, plus OP square, that is 5 square, and it will be equal to TO square, and TO is nothing but y plus 3 whole square, we already mentioned above. So it is y plus 3 square. Now students, we have from equation number 1, x square is equals to y square plus 4 square. So using equation number 1, in the place of x square I am just writing y square plus 4 square. So y square plus 4 square, this I substituted in the place of this x square, okay, and plus 5 square means 25, okay, is equals to y plus 3 whole square. Now students, this equation can be solved for y, okay. Easily you can observe, students, y square and 24 plus 16 will become 41, and it will be equals to y plus 3 whole square. So it can be written as, I am just expanding y plus 3 whole square, so it will be y square plus 6y plus 9. Now y square will get cancelled out, so 6y will be equals to 41 minus 9, or you can write 32. So the value of y will be 32 upon 6, and if you simplify, you will be getting the value of y is 16 by 3 centimeter. Now students, since we need x, so we can use the equation number 1 again. Now using equation number 1 again, x square will be equals to y square plus 16, y square plus 4 square, or 4 square means 16, okay. So just use the value of y which we just calculated, 16 by 3 whole square plus 16. Now we have to just simplify this, okay. 16 square is 256, 3 square is 9, and it is equals to plus 16, okay. So from here, students, I can write x square will be, if I take the LCM 9, it is 256, and 16 9s are 144. So the value of x square will be 256 plus 144, that is 400 upon 9, and from here the value of length, which is the required answer, will be square root of 400 upon 9. So square root of 400 is 20, and square root of 9 is 3. So your answer will be 20 by 3 centimeters. So students, we can conclude that the required length of tangent TP or TQ is will be 20 by 3. Both are equal. So length TP will be 20 by 3 centimeter. Okay, this is the answer of this particular question. Okay. Now students, as I told you in the beginning, that question can be solved by another method. Okay. In this method, what we did students, first of all, we applied the Pythagoras theorem in triangle OPR, so we calculated OR. Then we applied the Pythagoras theorem in the triangle TPR, and at the end we applied the Pythagoras theorem in triangle TPO. तो 3 बार हमने Pythagoras theorem अप्लाई करी स्टूडेंट्स, और कुछ मैनिपुलेशंस की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन में TP की वैल्यू निकाली. ठीक है. अब स्टूडेंट्स, अगर आप एक और मेथड पर जाना चाहें तो ट्रिगोनोमेट्री से हम कर सकते हैं, हम सिमिलरिटी से भी कर सकते हैं. मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री से बताता हूँ. ट्रिगोनोमेट्री हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स. देखिए, मैंने कहा था ना कि पिछले क्वेश्चन का यूज़ करते हुए भी मैं इसको कर सकता हूँ. देखिए, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, बताया था स्टूडेंट्स. ठीक है, मैंने कहा था कि क्योंकि इस एंगल का डबल है ये कंप्लीट एंगल PTQ, तो क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहे हैं तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. तो स्टूडेंट्स, आप इस चीज़ को प्रूफ कर दीजिए. आई गेस 4-5 स्टेप में इसका प्रूफ हो जाता है. ठीक है, कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा. ठीक है, आप इसको हम कर भी चुके हैं प्रूफ इसका. ठीक है, क्योंकि हमने ये तो प्रूफ करा ही है कि PTQ जो है वो डबल है OPQ का, और जो PTO है वो हाफ है PTQ का. ठीक है, तो हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को देखो स्टूडेंट्स कितना जल्दी कर सकते हैं. लेट अस सपोज ये एंगल थीटा है, तो क्योंकि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो ये एंगल भी थीटा हो गया. ठीक है, अब आप देखिए इस क्वेश्चन का अल्टरनेटिव अप्रोच. यहाँ इतने से पार्ट में हम इस क्वेश्चन को अल्टरनेटिवली सॉल्व कर लेंगे. देखिए, हम एक काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले
ट्राइंगल OPR में पहले तो मैंने जो यूज़ किया है वो लिख देते हैं स्टूडेंट्स। क्या यूज़ करा है हमने ये यूज़ करा है कि एंगल PTO और एंगल OPQ या OPR कह दो, एक ही बात है, एंगल OPR, ये दोनों ही इक्वल है। ये हम प्रूफ कर चुके हैं और इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम के अंदर आपको इसको पहले प्रूफ करना पड़ेगा, 4-5 स्टेप में ये प्रूफ हो जाता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, अच्छा, अब जब ये एंगल दोनों थीटा हैं तो हम देखो इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक काम करो स्टूडेंट्स, ट्राइंगल OPR में, इन ट्राइंगल OPR आप साइन थीटा बताएं क्या है। ठीक है, इन ट्राइंगल OPR अगर आप ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प लें और साइन थीटा निकालें, क्योंकि ये थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो थीटा के अपोजिट बनेगा परपेंडिकुलर, तो ये OR बनेगा परपेंडिकुलर, तो OR परपेंडिकुलर बनेगा और OR हमारे पास 3 है। ठीक है, और हाइपोटेनस तो OP है, तो ये बन जाएगा 3/5। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब सेम साइन थीटा आप निकालो इन द ट्राइंगल TPR, इन ट्राइंगल TPR। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि एंगल R 90 डिग्री है, क्योंकि एंगल R 90 डिग्री है, तो TP जो है वो हाइपोटेनस बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर साइन थीटा इक्वल होगा PR जो कि परपेंडिकुलर बनेगा थीटा के अपोजिट साइड अपॉन TP। TP हमारा x है। ठीक है, अच्छा, PR हमारे पास ऑलरेडी है 4, तो ये हो जाएगा 4/x। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा लिखा हुआ है, तो इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो 3/5 4/x के गारंटीड इक्वल होने वाला है, और यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। 3x इज इक्वल्स टू 20 एंड इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 20/3। ओके, सो स्टूडेंट देखो कितना शॉर्टकटली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हालांकि हमको ट्राइंगल OPR में पाइथागोरस थ्योरम लगानी ही पड़ेगी और ये दिखाना ही पड़ेगा कि ये दोनों एंगल इक्वल है, उसके बाद हम ट्रिगोनोमेट्री लगा सकते हैं। अगर आप ट्रिगोनोमेट्री नहीं लगाना चाहें, सिमिलरिटी भी कर सकते हैं। आप इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दो, आप देख सकते हैं दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, एंगल क्राइटेरिया से आपको सेम इक्वेशंस मिलकर मतलब सेम रेशियो से आप यहाँ पर इस x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने अपनी तरफ से आपको मेथड्स बता दिए हैं। नाउ इट्स अप टू यू विच मेथड सूट्स यू बेस्ट। ओके, चलिए इसके बाद स्टूडेंट्स वी हैव मोर क्वेश्चंस, बट वी विल कवर द नेक्स्ट क्वेश्चंस इन द next lecture. Okay, so let's meet in the next lecture. Till then, take care. Bye bye. Learned awesome concepts? Now time to test your learning. Try the lesson and quiz to evaluate your learning. Make sure you score 80% or more in the quiz before you jump to the next video.